Hi, welcome back to our channel Learning Mode. Today we are going to complete chapter number 7, that is Glimpses of India, and we are going to complete the third and the final conclusive part of this chapter number 7, Tea from Assam. Before I start the chapter, students, let us understand what is the backdrop of this particular chapter. है क्या इस chapter के अंदर? There are two friends, Pranjal and Rajveer. Pranjal hails from Assam. Pranjal जो है असम को बिलोंग करता है और उनके जो फादर जो हैं वो टी मैनेजर हैं वहाँ पे टी एस्टेट के अंदर. Rajveer is from Delhi. And Rajveer has been invited by Pranjal to come along to Assam, and both of them are going for a summer vacation in a train. So the passage, the chapter talks about the train journey between the two. In the opening paragraph, they are talking about tea as one of the favorite beverage across the world. As it is said by Rajveer, as you could read in the second half of the opening paragraph, that crores of teacups, that is exactly 80 crores of teacups are drunk every day around the world. So they are talking about the popularity of tea. Then in the following up paragraph, it talks about the train further moving out of the station and Pranjal is reading his detective book, whereas Rajveer is very ardently looking out of the window, looking at the greenery, because he is from a place like metropolis like Delhi, so he hasn't seen that type of a greenery, so he's enjoying the greenery outside the window, whereas Pranjal is reading the detective book. Although both of them are very good readers, so Rajveer is busy looking out and Pranjal is reading the detective book. In the last paragraph of this particular page, it clearly says that the view outside is magnificent. बहुत ही शानदार व्यू है. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और अब ट्रेन इस जगह पे पहुंच गई है कि चारों तरफ जो है टी के ही टी के बुशेस नज़र आ रहे हैं. यहाँ आप लोगों को जानना जरूरी है कि टी जो होता है उसका ट्री नहीं होता, उसका प्लांट भी नहीं होता है, उसका बुश होता है, झाड़ी होती है जो चारों तरफ स्प्रेड करती है. ओके, सो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, नाउ राजवीर कुड सी एवरीवेयर टी बुशेस ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, अ टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड अमिट्स the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि what is meant by dwarfing the tiny tea plants. Dwarfing का मतलब, the word dwarfing come from the word dwarf. Dwarf का मतलब होता है बोने. तो जो टी प्लांट्स हैं इनको ड्वार्फ करते हुए टॉल स्टडी शेड ट्रीज भी नजर आने लग गए. टॉल स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, शेड ट्रीज ऊंचे छाया देने वाले ऊंचे वृक्षदार पेड़ भी नजर आ रहे हैं जो कि इन टी को ड्वार्फ कर देते हैं, टाइनी टी बुशेस को ड्वार्फ कर देते हैं. और ये सारे के सारे जो ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस हैं ये डॉल की तरह फिगर्स नज़र आती हैं जब ट्रेन आगे बढ़ रही है. हमने हमेशा देखा है ना, जब भी ट्रेन आगे बढ़ती है तो जो ट्री होते हैं चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं ऐसे लगता है ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हैं. तो ऑथर का यही कहना है कि जो ये बुशेस हैं जो टी लीव्स के, ये ऐसे लगते हैं जैसे डॉल लाइक फिगर्स जो है वो बिजीली मूव कर रहा है ट्रेन के साथ. And once they move ahead, in the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और ट्रेन से उनको नजर आया एक बहुत ही पुरानी अगली बिल्डिंग है और वहाँ से स्मोक निकल रहा है. बिलोइंग आउट का मतलब होता है कमिंग आउट. अ लार्ज मास ऑफ स्मोक कमिंग आउट इज कॉल्ड बिलोइंग आउट. चिमनी वो होती है जो आउटलेट होती है जहाँ से स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज का. हे अ ट्री गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. और राजवीर को बहुत मजा आया जब उसने देखा पहला टी प्लांटेशन के पास में एक छोटा टी फैक्ट्री. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. और उसको कुछ भी यूनिक नहीं लगा. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of tea plantations in the world. So this is an information for all of you. Maximum plantation of tea garden is in Assam in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. और आप लगातार यहाँ पे गार्डन ही देखते रहेंगे, इतने देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, said Pranjal. I've been reading as much I could about the tea, Rajveer said. No one really knows who discovered the tea, but there are many legends. अब उनमें डिस्कशन शुरू हुआ. राजवीर ने बोला मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन किसी को स्पष्ट नहीं पता, साफ नहीं पता कि चाय आई कैसे, किसने इसे डिस्कवर की. Then Pranjal asked, what legend? Well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. अब एक जो लेजेंड है, पास्ट स्टोरी. लेजेंड का मतलब होता है पास्ट स्टोरी, कि एक चाइनीज एम्परर था, वो हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था. तो एक बार उनका पानी बॉईल हो रहा था तो जो नीचे ट्विग्स थी, जो लकड़ी थे, छोटी झाड़ियाँ थी जो उसको पानी को बॉईल करने में यूज़ की जा रही थी, उस झाड़ी से थोड़े बहुत पत्ते बॉइलिंग वाटर के अंदर गिर गए. एंड इट क्रिएटेड अ डेलिशियस फ्लेवर एंड इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. डेलिशियस का मतलब होता है टेस्टी, फ्लेवर बना दिया. और वो जो लीव्स गिरे थे एक्सीडेंटली वो टी लीव्स थे. ये स्टोरी है. टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल. ये कहानी सुन करके प्रांजल को बहुत गुस्सा है. एंड ही मॉक्ड राजवीर. स्कॉफिंग का मतलब होता है बच्चे मॉक्ड. मॉक्ड का मतलब होता है मजाक करना.
है ना, किसी को डेराइसिवनेस या डेरिजन करना यानी वो हंसे। और बताओ तुम्हें और क्या पता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। और राजवीर बोला कि एक इंडियन कहानी भी है, बौद्धि धर्म एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। दूसरी भारतीय कहानी है कि बौद्धि धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे और वो जब भी मेडिटेशन करना चाहते थे तो उनकी आंख लग जाया करती थी, तो उन्होंने उससे बचने के लिए अपनी आंखों की पलकों को ही काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और इन 2 आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स, 5-5 टी प्लांट्स निकले। और इन टी प्लांट्स के लीव्स को जब बॉइल्ड वाटर में डालते हैं एंड जब पिया जाता था तो इट बैनिश्ड स्लीप। बैनिश का मतलब होता है किल, द वर्ड बैनिश का मतलब किल, इट किल्ड द स्लीप। और हम जानते भी हैं कि बेवरेजेस टी या कॉफ़ी लेने से हमारे शरीर के अंदर कैफीन बढ़ता है ब्लड के अंदर, और कैफीन बढ़ने से जो होता है वो आलस घट जाता है और नींद जो है वो कम आती है। एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट साइंटिफिकली। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। अब राजवीर आगे डिस्कशन को लेके जाते हैं कि इन 2700 BC बिफोर क्राइस्ट टी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड टू हैव बीन ड्रंक्ड इन चाइना। चाइना में इतने सालों पहले भी चाय यूज की जाती थी। इनफैक्ट वर्ड्स लाइक टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, और ये सूचना मिली कि 16th सेंचुरी में ही यूरोप में टी आई, और वो भी एक मेडिसिन के रूप में आ रही थी। इट वॉज नॉट यूज्ड एज अ बेवरेज। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मिरियानी जंक्शन। क्लैटर्ड का मतलब होता है क्विक सीरीज ऑफ शॉर्ट लाउड साउंड, यानी एकदम से जब ट्रेन रुकती है तो जो उसकी स्क्रीची साउंड होती है एकदम ब्रेक्स के व्हील के पास से जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं क्लैटरिंग। तो उनकी ट्रेन रुकी एंड soon they were driving towards Pranjal's parents were waiting for them, and soon they were driving towards देखियाबाड़ी, the tea garden managed by Pranjal's father। और देखियाबाड़ी नामक जगह में उनके पिताजी टी एस्टेट मैनेजर थे। An hour later the car veered sharply off the main road। अभी तक 1 घंटे तक गाड़ी चल रही थी, फिर एकदम शार्पली उसने टर्न किया। वीड का मतलब होता है शार्प चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो एकदम तेजी से चेंज ऑफ डायरेक्शन किया। 1 घंटे के बाद में दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट। कैटल ब्रिज का मतलब होता है एक कच्चा ब्रिज, वो उन्होंने क्रॉस किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। ग्रेवल रोड का मतलब होता है छोटे छोटे कंकरों की कच्ची सड़क, और उसके दोनों तरफ जो है वो नीटली प्रून्ड टी बुशेस थे। प्रून्ड का मतलब होता है कट, सो नीटली कट सेम हाइट टी बुशेस वर देयर। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और चारों तरफ वो देख रहे थे, दोनों साइड में टी प्लकर्स जो थे जिनके पीछे कमर पे बैम्बू बास्केट था और प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए थे ताकि उस पे उनके शरीर पे दाग नहीं लगे, जो लिक्विड निकलते हैं वो नहीं लगे, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था। व्हाट दे वर डूइंग, दे वर प्लकिंग, वो तोड़ रहे थे न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। स्प्राउट का मतलब होता है जर्मिनेटेड, न्यूली जर्मिनेटेड टी लीव्स को वो तोड़ रहे थे। तो टी लीव्स के अंदर एक खासियत होती है, जो न्यूली फ्रेश लीव्स आते हैं वो ही टी मेकिंग में यूज किए जाते हैं। प्रांजल फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। और वो जो रोड थी थोड़ी संकरी थी, उनके पिताजी ने गाड़ी को थोड़ा सा साइड में किया और एक ट्रैक्टर जो पूरा का पूरा टी लीव्स का भरा हुआ था वो पास से निकल रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। यहाँ पे आपको समझना है कि जो टी होती है वो उसके 2 फसल होती है। पहली फसल को फर्स्ट फ्लश और सेकंड फसल को सेकंड फ्लश बोलते हैं। उसके बीच में मानसून होता है तब प्लकिंग रोक दी जाती है, उसके बारे में राजवीर उनको बोलते हैं। So his father got surprised and he said, "You seem to have done your homework before coming." Pranjal's father said in surprise. "Yes, Mr. Barua," Rajveer admitted, "and I hope to learn much more while I am here." And this ends the discussion between them. The chapter, friends, is all about the discussion between the two friends, and then the discussion between Mr. Barua, the manager of the tea estate, and his guest Rajveer. So if you ask me what type of questions may come, the questions may come about what all Rajveer saw while he was traveling towards Assam, 1. Second, what is the information or what stories are there, what legends are there about the discovery of tea? These are 2 major questions which may come. Not much is possible out of this chapter, but as I always have been saying, expect the unexpected. कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, so never leave anything. It will just take couple of minutes, 10-15 minutes, and you will be through with this particular chapter. So don't leave anything, okay? I hope you have been able to understand. So give us a like and share our channel details with your friends, okay? And make sure that you press the bell icon so that you are notified as soon as our new videos is out. So wish you all the very best. Have a great learning time. Bye bye, take care.